Namaskara and welcome to BIC Talks, a podcast by Bangalore International Centre. तो जब हमको ये पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट केस के एक्यूज का इतना मैराथन ट्रायल चलता है कि 14-14 साल लग जाते हैं, तो हमको ये रियलाइज हुआ कि अब हमारा केस जो कि झूठा है, सब कुछ गलत है, लेकिन चूंकि ब्लास्ट का केस बन चुका है तो इसमें टाइम लग सकता है, तो हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हमने ये कहा कि जब टाइम जेल में बिताना है, कितने साल लगेंगे किसी को पता नहीं है, तो हमको जो है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। इसीलिए अरेस्टिंग के नेक्स्ट ईयर हमने जो है कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि हम लॉ स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ग्रेजुएट थे। तो मैंने और जो है दूसरे एक एक्यूज ने जो है अप्लाई किया और कोर्ट ने हमको परमिट कर दिया। On July 11, 2006, tragedy struck when a series of bombs went off along the western line of the suburban train network in Mumbai, killing and injuring commuters by the hundreds. In the investigations and arrests that followed, Abdul Wahid Sheikh was held as one of the 12 accused who were incarcerated for over 9 years as under trials. In this episode of BIC Talks, teacher, lawyer, and activist Abdul Wahid Sheikh speaks to journalist Praveen Swami about his imprisonment and walks us through the details of what happened in the aftermath of the blasts the following decade, and his book Beguna Kaidi, which was translated into English recently with the title Innocent Prisoners. This episode will be bilingual with Hindi and English being spoken. And now, over to Praveen. Thank you, Lekha. Ladies and gentlemen, Wahid Sheikh doesn't need much of an introduction. He's the author of Beguna Kaidi, Innocent Prisoners, the quite incredible true story of the 12 men who were accused of bombing Mumbai's train system on the 11th of July 2006. That was one of India's most horrific terrorist attacks. 189 people were killed, more than 800 people injured, and the blast seemed to tear apart, among other things, not just the city, but for quite some length of time, the India-Pakistan peace process. It had wide-ranging international ramifications. The astounding part of the story, which has emerged over the years, is that not only is there credible evidence that the suspects in that case were not the perpetrators, but that investigators in several security agencies, including the NIA, seem to have come to that conclusion several years ago. Yet 5 people are on death row. Others have received life sentences. Wahid Sheikh is the man who was acquitted and has come out to tell us this quite extraordinary tale. Wahid Sheikh, welcome to this program, firstly. Thank you, Praveen ji. And secondly, I think it's always interesting to start a story at the beginning. Where were you on that day of the Mumbai train bombings? How did you come to learn of it? And finally, when did you and how did you discover that you were actually a suspect in this matter? देखिए, जिस दिन 11 जुलाई 2006 को जो ये ब्लास्ट हुआ था, उस दिन मैं अपने फ्लैट पर था मुंब्रा में, और मेरा रेंटेड फ्लैट था, और मैं और मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे, मेरे माता पिता सब वहाँ पर रहते थे। तो मुझे जो पहली बार जो इस ब्लास्ट की नॉलेज मिली है वो टेलीविजन से है। हम न्यूज़ देख रहे थे शाम के वक्त, और अचानक उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी और पता चला कि बॉम्बे में ट्रेनों में 7 ब्लास्ट हुए और इतने इतने सारे लोग मरे हैं। तो ये सुनकर बहुत दुख हुआ, और हम लोगों ने, जो मेरे दोस्त के घर पर हम लोग ये टीवी देख रहे थे, वहाँ हमने शेयर किया एक दूसरे को कि ये बहुत ही गलत बात हो रही है, अच्छा नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद एज यूजुअल मैं अपने घर गया और मैं सो गया। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे जब मैं अपने रूटीन के काम करने लगा, तो फिर मुझे पता चला कि पुलिस जो है मुझको पुलिस स्टेशन बुलाया है इंक्वायरी के लिए। मैं इमीडिएटली पहुंच गया, क्योंकि मेरा ये मानना था कल तक कि हमको जो है पुलिस का पूरा कोऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि पुलिस गलत नहीं करती है, पुलिस की किसी भी इन्वेस्टिगेशन में हमको साथ देना चाहिए।
तो मैं पुलिस स्टेशन चला गया, लोकल पुलिस स्टेशन में। मुझे पुलिस ने इसलिए बुलाया क्योंकि 2001 में पुलिस ने मुझ पर एक झूठा केस बना रखा था जो एक कोर्ट में पेंडिंग था। 2001 में आप जानते हैं स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी को बैंड किया गया था, और बैंड करने के बाद वेरियस पुलिस स्टेशंस में अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे लोगों को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। तो मैं सिमी का मेंबर नहीं था, लेकिन मैं एक यूथ था, एक स्टूडेंट था उस वक्त। तो मुझे भी जो है झूठे केस में यूएपीए के तहत जो है बंद कर दिया गया था, और वो केस पेंडिंग था, और पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम जो है सिमी एक्टिविस्ट या सिमी मेंबर के लिस्ट में शो कर रहा था। तो जब भी कोई बात होती थी, कहीं फसाद होता था, राइट होता था, कम्युनल राइट होता था, या इस तरह का कोई दंगे फसाद के साथ साथ जो है बम ब्लास्ट वगैरह होते थे, तो पुलिस अपने लिस्ट निकालती थी और देखती थी उसमें सिमी के कौन लोग हैं और उनको इंक्वायरी के लिए बुलाती थी। इस तरह पुलिस ने मुझे बुलाया। मैंने पुलिस का बहुत ही साथ दिया, कोऑपरेट किया, फौरन पहुंच गया। जो जो सवालात वो पूछ रहे थे मुझसे वही पूछ रहे थे कि आप 11 जुलाई को आप कहाँ थे। मैंने बताया मेरे घर पर था। वो पूछ रहे थे कि इस ब्लास्ट में आप क्या जानते हैं, इस ब्लास्ट के बारे में क्या जानते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि ये ब्लास्ट किसने किया होगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक आम जो है नागरिक हूँ, एक कॉमन सिटीजन हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे क्या पता, ये तो काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है, वो देखे। हाँ मैंने नहीं किया है, आपने बुलाया, मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है पुलिस के संपर्क में रहिए, पुलिस के कांटेक्ट में रहिए, और आप जो है यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं आपको जाना है, शहर छोड़कर जाना नहीं है, और जब भी आपको बुलाएंगे आपको आना है और कोऑपरेट करना है। मैंने कहा मैं तो हमेशा कोऑपरेट करता आया हूँ, आगे भी करूंगा। फिर उसके बाद मुझे क्राइम ब्रांच ने बुलाया, एटीएस ने बुलाया, एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो मुंबई का है, और यहाँ का जो रघुवंशी जो उस वक्त केपी रघुवंशी जो चीफ थे एटीएस के, उन्होंने बुलाया, और कई बार जो है मुझे बुलाकर पूछताछ करते रहे, छोड़ते रहे। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पुलिस रिकॉर्ड में, एटीएस के रिकॉर्ड में ये बात लिखी जाती रही है बार बार कि वाहिद को हमने ब्लास्ट की इंक्वायरी के लिए बुलाया क्योंकि उसका नाम सिमी के रिकॉर्ड पर था, सिमी की लिस्ट में था, और उसको हमने पूछताछ करके छोड़ दिया। लेकिन 3 महीने तक इस तरह से इंक्वायरी करने के बाद, उस दौरान मुझे कई बार इलीगल डिटेन किया, कई बार टॉर्चर किया, कई बार हाजिरी पे बुलाया गया, और मुझे बहुत ज्यादा सताया गया। लेकिन मैंने घर छोड़कर या एरिया छोड़कर मैं एब्सकॉन्ड नहीं हुआ, और पुलिस के बुलाने पे मैं जाता रहा, क्योंकि मुझे ये था कि पुलिस हमारी गलत नहीं करेगी, कम से कम ब्लास्ट के केस में। हाँ 2001 में मुझ पे गलत केस लगाया था, यूएपीए का एक गलत केस था, लेकिन मैं समझता था वो छोटा केस है, वो गलती पुलिस से हो गई होगी कि सिमी का एक्टिविस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे उस केस में फंसाया गया। लेकिन इस बार ब्लास्ट का जो केस था, तो मुझे ये उम्मीद थी कि पुलिस कम से कम नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करेगी कि ओरिजिनल लोगों को छोड़ दे और किसी बेगुनाह को फंसा दे। लेकिन ये मेरा जो ख्याल है वो गलत साबित हुआ, और 3 महीने के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कंटिन्यू मुझे हरेस करने के बाद, सितंबर 29, 2006 पुलिस अरेस्टेड मी इन दिस केस। मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया, मैंने बहुत उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप ये क्या करने जा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि हम मजबूर है, हमको ओरिजिनल लोग नहीं मिल रहे हैं, किसने ब्लास्ट किया है ये हमको पता नहीं चल रहा है, हम इन्वेस्टिगेशन कर करके थक चुके हैं, कोई भी क्लू हमको नहीं मिल रहा है, तो अब हम किसको डालेंगे। जो प्रीवियसली एटीएस सिमी के रिकॉर्ड में है जो लोग, उनको ही हम डालेंगे, मुसलमानों को ही हम डालेंगे। इस तरह की वो बातें करते थे, एटीएस वाले हमसे कहते थे। तो इसलिए हम मजबूर हैं, हम डालेंगे, लेकिन अभी आप खामोश रहो, हो सकता है कि आपको छोड़ दिया जाए। तो एक तरह से धोखा दे करके, डरा धमका करके पुलिस ने मुझे इस केस में अरेस्ट किया। Wahid, I think our listeners, listening to your story about how you were picked up basically because you were a member of the Students Islamic Movement of India, that there was no actual compelling evidence. No, because you were alleged to be a member. Please let me correct myself. Yes. Alleged to be a member. You figured on some old list of theirs. They were looking for somebody to hang the case on, or quite literally, as it would turn out, some people to hang for this offense, and just framed some fairly random people. This story might to many of our listeners sound incredible, implausible, and there's a little bit of context, I think, that it would be helpful for them to know. And that context is this. Even before
the Mumbai bombings, the bombing of the Mumbai suburban train system, there had been bomb blasts in northern India. There was a bombing in Varanasi in March 2006. There was some suspicion that it had something to do with the Lashkar-e-Taiba, and individuals were arrested in that case. But even after the Mumbai bombings continued to go on. There were attacks in Hyderabad, in Delhi, in Jaipur, and in November 2007, an email arrived in newsrooms across India claiming responsibility for this entire string of bombings on behalf of until then, an unknown organization called the Indian Mujahideen. Nobody had heard of this group until then. Nobody knew what it really was. And these emails continued to arrive after every new attack, sometimes inside minutes of a bombing. And this was to continue into 2008. Now, the interesting thing about these emails were they specifically took responsibility for the bombing that Wahid Sheikh and his friends were already being held inside prison for. And it was quite clear from these emails that the perpetrators of those attacks were saying that they were still around, that they were still able to act. Why? The question I had for you was, even in as late as 2007, when these emails started arriving, did anyone in the ATS, anyone in the Mumbai police come back to you to reconsider the evidence or to discuss with you again the allegations they seem to have been guided by? Did you sense any effort, basically, to reconsider the case the year after you were arrested? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2008 में जब पहली बार बॉम्बे क्राइम ब्रांच के चीफ राकेश मारिया उस वक्त थे, उन्होंने जब इंडियन मुजाहिदीन के एक्यूज को पकड़ा, 18 से 20 एक्यूज को बॉम्बे में, और उन्होंने ये बात कही कि इंट्रोगेशन में ये बात सामने आई है कि सादिक शेख और उसके साथियों ने मिलकर के जो है 7/11 का बम ब्लास्ट भी किया है। लेकिन उस वक्त वापस से केपी रघुवंशी को और एटीएस का चीफ बना दिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि 26/11 के अटैक में जो है हेमंत करकरे जो एटीएस के चीफ थे उनको मार दिया गया था और उसकी जगह पे वापस इनको लाया गया था। तो ये बात जब केपी रघुवंशी साहब ने सुनी कि राकेश मारिया साहब इस तरह का क्लेम कर रहे हैं कि जो पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं वही 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट में मुलविस है, उन्होंने ही किया है, तो केपी रघुवंशी साहब को ये महसूस हुआ कि अगर हमने इस केस को रीओपन किया तो उनकी बड़ी बदनामी होगी और उनको अपनी गलती कबूल करना पड़ेगा। उनको ये कबूल करना पड़ेगा कि ये 13 लोगों को गलत जो है गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ गलत चार्जशीट फाइल की गई है। तो ये बहुत आसान बात नहीं थी, ये पूरे के पूरे एटीएस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता था। इसलिए उन्होंने दूसरी टेक्निक अपनाई। उन्होंने ये टेक्निक अपनाई कि सादिक असरार शेख को हमारे केस में 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट में अरेस्ट किया और उसको प्रोड्यूस किया मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी पुलिस कस्टडी ली गई और सादिक असरार शेख को मारा गया इस बात पर कि वो डिनाई करे कि उसने जो है 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट किया। हालांकि वो ये कह रहा था कि हाँ मैंने किया है और मेरे साथियों ने मिलकर किया है, इंडियन मुजाहिदीन ने किया है, किस तरह किया उसने सारी डिटेल बताई। और हमें ये पता है कि एटीएस ने उन सारी चीजों को क्रॉस चेक किया कि हाँ ये फैक्ट है, लेकिन एटीएस के केपी रघुवंशी साहब मजबूर थे उस वक्त अपनी गलती पर कि अगर वो सादिक असरार शेख को इसमें एक्यूज बना देते, कंफर्म कर देते कि हाँ इसने किया है, तो हम सबको जो है छोड़ना पड़ता है। इसलिए उन्होंने हमको नहीं छोड़ा और कभी भी एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन के पार्ट को ओपन होने के बाद कभी भी एटीएस हमारे पास जेल में नहीं आई या हमसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया या हमसे कोई भी जो है वापस से कोई क्रॉस चेकिंग वगैरह नहीं की गई। और बाद में एटीएस ने कोर्ट के अंदर जो है 164 सादिक असरार शेख का प्रोड्यूस किया जो कि बिल्कुल बोगस था और ये कहा कि साहब उसने जो है इंडियन मुजाहिदीन के अदर एक्यूज रियाज भटकल और दूसरे लोगों के प्रेशर में आके ये जो है ब्लास्ट की जिम्मेदारी कबूल की थी और वो चाहता था कि ये 13 एक्यूज को कुछ फायदा मिले, इसलिए उसने किया, इस तरह की उसने गलती की है, एक्चुअली उसने ब्लास्ट नहीं किया है, इसलिए हम उसको डिस्चार्ज देते हैं, हम उसको जो है डिस्चार्ज करने की अपील करते हैं। तो कोर्ट ने जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो वो जो मैजिस्ट्रेट है जिसने हमको सजा दी है, उसी मैजिस्ट्रेट ने सबसे पहले सादिक असरार शेख को इस केस से डिस्चार्ज किया है एटीएस के कहने पे।
तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एटीएस ने इस केस को जो है रीओपन किया हो या उसकी री इन्वेस्टिगेशन की हो, अदर देन दिस। और हमने बार बार जो है चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, यूनियन होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब उस वक्त थे, हमने बार बार एप्लीकेशन अंदर से लिखी है जेल से कि इस केस को रीओपन किया जाए, इसकी री इन्वेस्टिगेशन की जाए, कम से कम इसको जो है सीबीआई, और बाद में हमने एनआईए का मुतालबा किया कि इसके जरिए से इसकी जो है री इन्वेस्टिगेशन की जाए, सच सामने आएगा। आज भी वो सारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एनआईए ने खुद, जैसा कि अभी प्रवीण सर ने बताया, एनआईए ने खुद अपनी चार्जशीट में 2014 और 2015 में हैदराबाद के कोर्ट के अंदर और दिल्ली के कोर्ट के अंदर ये बात चार्जशीट में लिखी हुई है कि ये ब्लास्ट में जो है इंडियन मुजाहिदीन के लोगों का हाथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दुख की बात है कि इसमें 13 जो बेगुनाह है, जो 12 लोग उसमें उनको सजा लग गई है और वो आज भी जेल में है, जिसका केस पिछले 6 सालों से बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। So I know to some of you, this story will be incredible. The story that in essence Wahid is telling us is that not only had investigators arrested some people who had nothing to do with this catastrophic terrorist attack, but that they acquired evidence that a completely different bunch of people had carried out this attack. Yet they were never willing, for whatever reasons, to revisit their conclusion and prosecute the actual perpetrators who were in their custody. Now, this sounds almost filmic. It sounds like our worst cliches from a pop film about what the police do. But we know this from the NIA's own charge sheets filed in 2013. For example, they say from that 2013 charge sheet, that investigation is established, and I'm quoting now, that the accused Asadullah Akhtar was aware about the participation of members of his group in the blasts in Mumbai. And it continues, those blasts were carried out, and I quote again, by Indian Mujahideen operatives, including but not limited to Sadiq Sheikh, who Wahid mentioned, Bada Sajid, a nickname for Muhammad Sajid, Atif Amin, killed in the Batla House encounter, and Abu Rashid, probably later killed in Syria. So this is the NIA, our country's sort of premier counter-terrorism agency, saying something completely different from the Mumbai police account. Similarly, just like Wahid, the police in Uttar Pradesh had done the same thing. They had arrested a cleric from Phulpur, Muhammad Waliullah, on charges of carrying out the 2006 Varanasi bombing. He was convicted eventually for possession of an illegal weapon, but the role in the bombing was never proved. I thought I would ask you, Wahid Saab, the actual evidence in this case, which they produced against you in the trial court, against the group of you, was quite thin, wasn't it? For example, they said that the bombs had been made inside a room, which I've seen. And it seemed strange to me, even at the time, that you could fit so many bombs and people into that room. I was wondering if you might have if you might be able to guide us through the actual evidence that shaped this prosecution. देखिए, ये जो ब्लास्ट की जो एविडेंस की बात है, एटीएस की स्टोरी ये है कि एक एक्यूज है हमारे केस में, जिनका नाम है मोहम्मद अली आलम शेर शेख, और वो गवंडी एक एरिया है बॉम्बे का, वहां पे एक स्लम एरिया है, वहां पे रहते हैं। उनका रूम जो है बहुत छोटा है, 10 बाई 10 का एक सिंगल रूम है। और पुलिस एटीएस की स्टोरी ये है कि उस 10 बाई 10 के सिंगल रूम में जो ओपन है, यानी जिसपे दरवाजा भी नहीं लगा है, और वहां पे जो है 10 से 12 जो है इंडियंस और पाकिस्तानी आते हैं और वहां दिन भर बैठ के 3 दिन बॉम्ब मेकिंग होती है। 3 दिन दरवाजा खुला रखकर ओपनली, और एकदम मुस्लिम क्राउडेड एरिया है जहां पर पब्लिक कंटिन्यू आ रही है और जा रही है। रोड टच रूम है और उसमें 10 से 12 लोग बैठ करके बॉम्ब मेकिंग कर रहे हैं, और अचानक 2 विटनेस वहां पहुंच जाते हैं और उनको मिलने के लिए, और लोग देखते हैं कि वहां पे बॉम्ब मेकिंग हो रही है। और उसके बाद वो 2 विटनेस जो है महीनों तक खामोश रहते हैं। ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद फिर ये एटीएस के सामने जाते हैं और कहते हैं कि हमने बॉम्ब मेकिंग करते हुए देखा था। ये वही विटनेसेस है जो गेट ऑफ इंडिया ब्लास्ट के अंदर भी मेन विटनेस है। तो ये रिपीटेड विटनेस जो है एटीएस ने प्लांट किया है, और हमारे खिलाफ इस तरह का बोगस एविडेंस कोर्ट में पेश करके कन्विक्शन लेने की कोशिश की गई है। जो 3 मेन एविडेंस है जो एटीएस ने
कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, सबसे पहले है कन्फेशनल स्टेटमेंट। 13 एक्यूज में से 11 एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट जबरदस्ती 3rd डिग्री टॉर्चर करके, 4th डिग्री टॉर्चर करके उनके रिटर्न कन्फेशनल स्टेटमेंट पर सिग्नेचर ली गई और उसको एज एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। हमने उसको रिट्रैक्ट किया, हमने बार बार कंप्लेंट की कि ये हमारा कन्फेशन नहीं है, हमको मार मार के लिया गया है, लेकिन कोर्ट ने जो है कहा कि ये सब आफ्टर थॉट है। दूसरा जो एविडेंस इन्होंने प्रोड्यूस किया है वो रिकवरीज है। बहुत से लोगों के घरों में इन्होंने कहा कि इनके पास से जो है भड़काऊ लिटरेचर मिला, उनके घरों से आरडीएक्स के पार्टिकल्स मिले, उनके घर से ग्रैन्यूल्स मिला और दूसरे जो है हथियार तरह के छोटे बड़े हथियार मिले, कुकर्स मिला। ये इन्होंने बात कही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये सारी चीजें प्लांट की हुई है और हमारे घर में से इस तरह की कोई चीज मिली नहीं है। झूठा पंचनामा बनाकर वो सारे जो पुलिस के चार्जशीटेड विटनेस है, पुलिस के स्टॉक विटनेस है, पुलिस के जो खबरी है, उनको विटनेस बना करके प्रोड्यूस किया गया ये सारी रिकवरी को साबित करने के लिए। और तीसरा जो एविडेंस इन्होंने प्रोड्यूस किया है वो विटनेसेस है। हमारे ही रिश्तेदारों को मार तोड़कर धमकी दे करके ये कहा गया है कि अगर आपने वाहिद के खिलाफ या साजिद के खिलाफ अगर आपने गवाही नहीं दी तो आपको भी एक्यूज बनाया जाएगा। और मजबूरन मेरा भाई, उसका साला, किसी का चाचा, किसी का भांजा, किसी का भतीजा हमारे खिलाफ जो है गवाही देने के लिए कोर्ट में आए, क्योंकि उनको पता था कि एटीएस अगर इन 13 लोगों को इस केस में एक्यूज बना सकती है और 9-9 साल, इतने साल अगर जेल में रख सकती है, तो इनको भी जो है अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया जाएगा और कोई बचाने नहीं आएगा। तो बेचारे डर के मारे उन्होंने गवाही दी। अब कुछ लोगों ने जो है बाद में हॉस्टाइल भी हो गए, जैसे मेरे खिलाफ जो गवाह था, मेरा साड़ू था, वो मेरी वाइफ का भाई, मेरी वाइफ की बहन का हस्बैंड, तो उसने कोर्ट में आकर डेयरिंग से कहा कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, वाइफ के घर पे कोई पाकिस्तानी नहीं आए और उसके वहां पे कोई जो है कॉन्स्पिरेटल मीटिंग नहीं हुई और इसलिए जो है प्रोसिक्यूशन ने उसको हॉस्टाइल कर दिया और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए मुझे कोर्ट ने छोड़ दिया। लेकिन 12 लोगों के खिलाफ सबूत मिले, इस सेंस में कि जो प्लांटेड सबूत थे, जो क्राफ्टेड एंड ड्राफ्टेड जो एविडेंस थे, जो एटीएस ने ड्राफ्ट किया, क्योंकि 2008 में रघुवंशी को ये पता चल गया था कि अगर हमने इनको सजा नहीं दिलवाई तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन का एक चैप्टर ओपन हो चुका था। तो इन्होंने जो है बाय हुक और बाय क्रुक जो है पूरी कोशिश करके ये 3 अलग अलग प्रकार के जो है एविडेंस प्रोड्यूस किए, एविडेंस क्रिएट किए और उसके नतीजे में कोर्ट ने जो है इन लोगों को सजा दी, जो कि सजा गलत है। One of the other sort of fascinating parts of this story is that we now have a fair amount of sort of first person sort of testimony given to the NIA and others of exactly what happened. We know, for example, that the NIA believes that Sadiq Israr Sheikh, who Wahid mentioned earlier, carried out the bombing. He described to his interrogators the room where he carried out the bombing at the Deccan Cooperative Society in Sewri. To the best of my knowledge, none of these leads were ever really investigated until it was too late. Forensics weren't carried out properly. And there was one fascinating feature in the original prosecution against Wahid and his friends. And this was, I believe, the police understood fairly early that it did not actually have very much evidence, hard evidence. And it turned to an extraordinary technique used nowhere in the world for criminal prosecutions. It turned to a practice called narco-analysis, which basically consists of injecting suspects with sodium pentothal on the presumption, not very well founded in science, that they will then tell the truth. वाहिद, ये नार्को एनालिसिस और ये सारा जो हुआ था, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इस पे भी काफी विवाद हुआ था ना? जी। जब हमको एटीएस ने अरेस्ट किया इस केस में, तो हम इनसे बार बार कहते थे कि सर आप गलतफहमी हुई है, हमने ये ब्लास्ट नहीं किया है, आपने जो है रॉन्गफुल अरेस्टिंग की है। तो वो कभी कभी हमको, यानी देखिए वो इतने चालाक थे, कभी वो हमको कहते थे कि हाँ हमको पता है आपने नहीं किया है, किसी और ने किया है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम आपको पकड़ रहे हैं। कभी वो कहते थे कि नहीं तुमने ही किया है, लेकिन तुम जो है छुपा रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो। ओके,
तो हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारा नार्को टेस्ट करते हैं। तो हमने कहा नार्को टेस्ट क्या है सर? उन्होंने कहा कि देखो नार्को टेस्ट ये है कि इसमें आपका जो है एक साइंटिफिक टेस्ट होगा, और उसमें अगर आपने जो सच कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे उसके आपको जवाबात देना है। अगर उसमें आपने ये कह दिया या ये चीजें रिवील हुई कि आपने ये ब्लास्ट नहीं किया है, तो फिर जो है हम आपको छोड़ देंगे। तो हम बहुत खुश हुए और हमने कहा कि ठीक है, हमारा तो नार्को टेस्ट आप कल करना है, आप आज कीजिए, पहले मेरा कीजिए। और फिर हम सबको जो है बेंगलोर लेकर गए। डॉक्टर एस मालिनी जो वहां पर नार्को टेस्ट करती थी, और जो बहुत ही डिस्प्यूटेड लेडी है, जिसको बाद में टर्मिनेट किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट जमा किए थे, उसने कई नार्को टेस्ट सीडी के साथ छेड़छाड़ की थी, वो एक अलग स्टोरी है। तो जब हम उस लेडी के पास पहुंचे तो हमने यही कहा कि मैडम हमारा जो है नार्को टेस्ट कीजिए, हम तो जो सच कह रहे हैं होश में, नार्को टेस्ट के दौरान भी हम वही कहेंगे जो सच है। तो उसने कहा ठीक है। अब नार्को टेस्ट के दौरान जो उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसका जिसका नार्को टेस्ट होता है उसको उसको ये याद रहता है कि उसके साथ क्या हुआ था, आई मीन उससे क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, वो क्या आंसर दे रहा था। तो मुझसे और मेरे को एक्यूज के साथ जो क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, किस तरह से एडिट किया गया, ये बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही तकलीफ वाली बात थी। हमसे ये पूछा गया, जैसे मुझसे ये पूछा गया था डॉक्टर एस मालिनी ने, कि आप बताइए आपने ये ब्लास्ट किन लोगों के साथ मिलकर किया है? तो मैंने कहा कि मैंने तो ये ब्लास्ट नहीं किया है, और मेरे साथ तो मैंने किसी के साथ मिलकर नहीं किया है। तो उसने जो है क्वेश्चन को रीफ्रेम किया और कहा कि जिस जो तुम जो एटीएस की कस्टडी में हो, जिस सेल में हो, तो तुम्हारे आजू बाजू जो सेल में कौन लोग हैं उनके नाम बताओ। तो मैंने कहा मेरे मेरे आजू बाजू सेल में साजिद है और माजिद है और नवेद है और कमाल है। तो अब इसका क्वेश्चन ये किया गया कि आपने ये ब्लास्ट किन लोगों के साथ मिलकर किया? तो जवाब ये आ रहा है कि साजिद, माजिद, कमाल और नवेद के साथ। अब किसी से इसने ये सवाल पूछा कि कितने ब्लास्ट किया आप लोगों ने? उसने कहा हमने ब्लास्ट नहीं किया। तो अब उसको क्वेश्चन को रिफ्रेम किया गया कि अच्छा बताइए 6 के बाद क्या आता है? तो वो कहता है 7। क्वेश्चन रखा गया कि आपने कितने ब्लास्ट किए? आंसर है 7। अब किसी से ये सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि ब्लास्ट आपने रिमोट कंट्रोल से किया है या कि टाइमर से? उसने कहा हमने तो ब्लास्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता। तो उसने कहा अच्छा ये बताओ टीवी कैसे चलता है? तो वो कहता है रिमोट कंट्रोल। तो अब सवाल यह है कि आपने ब्लास्ट किसकी मदद से किया? तो जवाब है रिमोट कंट्रोल। तो इस तरह से वो सीडी कुछ एक्यूज को दिखाई गई, कुछ एक्यूज को नहीं दिखाई गई, और मीडिया के अंदर और पूरा हाइप बनाया गया कि नार्को एनालिसिस टेस्ट के अंदर इन सब लोगों ने एडमिट कर लिया है और यही रियल कल्प्रिट्स है। हमारे पास जो है मजबूत सबूत है, एविडेंस है। और जो है जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, के पी रघुवंशी साहब जो है एक पर्चा निकालते थे, जब मीडिया वाले क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे तो वो एक पर्चा निकालते थे और दिखाते थे अल कायदा मैनुअल। जब हम कोर्ट में जाके चीख पुकार करते थे, जब हम कोर्ट में जाकर कंप्लेंट करते थे, जब हम नार्को टेस्ट की कंप्लेंट करते थे, तो ये मीडिया वालों को दिखाते थे कि अल कायदा मैनुअल ये फॉलो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बदनाम करना, उन पे टॉर्चर के इल्जामात लगाना, नार्को टेस्ट में छेड़छाड़ हुआ ऐसे जो है इल्जामात लगाना, ये सब ट्रेन टेररिस्ट है और ये इनकी आदत है। इनको आप बिलीव मत कीजिए, और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये जो नार्को टेस्ट है ये बहुत ही बकवास है। मैंने अपनी किताब में भी ये बात लिखी है कि अगर आप ये समझते हैं किसी केस में किसी को अरेस्ट किया गया और वो समझता है कि नार्को टेस्ट हो जाए तो उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी, तो कभी भी नार्को टेस्ट के लिए कंसेंट मत दीजिए। नार्को टेस्ट के बारे में बहुत कम लोग हैं शायद दुनिया में जो पर्सनली नार्को टेस्ट अंडरगो किए हैं। There'll be very few people in the world who've got a narco test. Can you describe to us a little bit what it is like? Are you still in your senses, or is it like being drunk, or what is the mental state like? Can you understand the questions? Does your brain function? Can you just describe that experience? देखिए नार्को टेस्ट जब आपका होता है तो इनको सबसे पहले जो है कोर्ट के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है, और आपके हाथ से कंसर्न लेटर पे सिग्नेचर करा के कोर्ट में जमा करना पड़ता है कि देखिए साहब को एक्यूज जो है खुद जो है नार्को टेस्ट के लिए राजी है। उसके बाद आपके बहुत सारे जो है टेस्ट होते हैं, आपके जो है पूरी फुल बॉडी चेकअप होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो इतने सारे टेस्ट वो सिविल हॉस्पिटल्स में किए गए, जे हॉस्पिटल वगैरह में, कि हमारा 2 दिन तक टेस्ट होता रहा। मुझे नहीं मालूम कितने टेस्ट हुए और कितने महंगे महंगे टेस्ट होते रहे। अगर बाहर करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा।
फिर वो रिपोर्ट्स आती है तो वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होना चाहिए, उसका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, अगर उसको शुगर है तो शुगर नॉर्मल होना चाहिए, सारे चीज नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रोसेस आता है कि जिस दिन नार्को टेस्ट होने वाला है उससे 24 घंटे पहले खाना पीना उसका बंद कर दिया जाता है, बहुत थोड़ा सा पानी उसको पीने दिया जाता है और वो खाना खा नहीं सकता। तो हमको लेके जाने वाले थे तो रात में ही हमसे कह दिया गया कि आपको बिल्कुल खाना पीना बंद करना है, थोड़ा सा आप पानी पी सकते हैं और बाकी खाना आपको नहीं मिलेगा, नार्को टेस्ट होने के बाद मिलेगा। फिर ये लोग हमको जो है बेंगलोर लेकर गए, बेंगलोर में जब ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए तो हमको जो है ऑपरेशन का एक वो जो लिबास है वो पहनाया गया और हमको लिटाने के बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर सबसे पहले हमको जो कैमरा लगाया गया, जो हम जहाँ लेटे हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में कैमरा है और राइट साइड में डॉक्टर एस मालिनी खड़ी है। कैमरा ऑन किया जाता है और उसके बाद जो है सेलेन के जरिए से जो ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है उसमें इंजेक्शन डालते हैं, जिसमें जो है एनेस्थेसिया का इंजेक्शन डाला डाला जाता है और एक लिक्विड डाला जाता है जिसका नाम आपने लिया है पेंथियम सोडियम। तो ये दवाई डालने के बाद आपको वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है, आपका नाम क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी शादी हो गई क्या, आपके बच्चे कितने हैं, आपके बच्चों के नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपको क्या पसंद है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन करती है और आपको समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसके जवाब भी देते हैं। लेकिन जैसे ही वो दवाई अंदर जाती है, आपके खून में जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आपको जो उसका नशा चढ़ता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत थक गए हैं और आपको नींद आ रही है, लेकिन आप सोते नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे गुनूदगी आ रही है, थोड़ा सा बेहोशी आ रही, लेकिन आप बेहोश नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा नींद टाइप लगता है और वो बार बार आपके गाल पर थपकी देगी और आपको जगाएगी और आपसे सवाल पूछेगी, आपसे जवाब देने की कोशिश करेगी। तो मेरे पूरे प्रोसेस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं पूरी तरह बेहोश हो गया या पूरी तरह मैं सो गया या मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझसे क्या पूछ रही है और मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि पूरे प्रोसेस में मुझे ये एहसास हो रहा था कि सराउंडिंग्स में मुझे पूरा धुंधला-धुंधला दिखाई दे रहा था और डॉक्टर एस मालिनी क्या सवाल कर रही है, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, मुझे पूरा होश था। यही वजह है कि जब इन्होंने बाद में सीडीज़ दिखाई हमारे को-एक्यूज़ को, तब उन्होंने ये कहा कि ये तो सारी एडिटेड सीडी है, हमने सवाल का ये जवाब दिया था और इसमें जो है सवाल बदल दिया गया और ये हमारे साथ जो है चीटिंग हुई है। ये भी वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज रिपोर्टेड एट द टाइम इज कि कुछ आपके को-एक्यूज ने ऐसी बात कही थी जो बिल्कुल काल्पनिक थी। They had said some completely imaginary things under narco analysis. Uh, is that true? There was, for example, one report which said that somebody said in that state of unconsciousness that they even knew Osama bin Laden or Khalid Sheikh Mohammed, I think it was, who was dead for a long time by then. So they could never have met him. Is there any truth in these reports from that time? नहीं नहीं नहीं, इट्स टोटली रॉन्ग। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और हमको जो याद है कि हमने जो इंट्रोगेशन के दौरान हमसे सवाल पूछे जा रहे थे और जो हम जवाब दे रहे थे वही सारे सवाल, क्योंकि आपको पता है कि नार्को टेस्ट में क्वेश्चनरी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देती है और डॉक्टर को क्वेश्चंस वो इन्वेस्ट जब हमारा नार्को टेस्ट हो रहा था तो एटीएस के बड़े बड़े अफसर, इवन केपी रघुवंशी को और हमने नवल बजाज को देखा था ऑपरेशन थिएटर में, वो वहाँ खड़े थे और वो उसको डिक्टेट कर रहे थे कि ये क्वेश्चन है उसका ये जवाब हमको चाहिए। तो क्वेश्चनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देती है, जवाब एक्यूज देता है, लेकिन जो जवाब जो सच होता है वही देता है। आई डोंट रिमेम्बर और आई डोंट थिंक इस तरह का कोई जवाब किसी एक्यूज ने दिया हो कि उसामा बिन लादेन या खालिद वगैरह से मिले हो। ये सब मुझे लगता है बकवास है। हमने जो सही जवाब था वही दिया कि हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। So I want to move on a little bit to the trial. Many years go by. You have a long trial. The evidence, as you said, is not very persuasive. Were you surprised personally when your friends were convicted on the basis of this evidence? देखिए, हमने तो बहुत कोशिश की थी कि हम सब जो है इस केस से बाइज्जत बरी हो जाए क्योंकि हम बेगुनाह हैं। हम पहले दिन से ये मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने किताब 2015 और 16 में मेरी किताब छपी है या 2021 में अंग्रेजी बुक आ रही है तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि हम बेगुनाह है या टॉर्चर किया गया। 2006 से फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अरेस्टिंग हम कह रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमारा
इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जो हम बेस्ट इसको जो है डिफेंड कर सकते थे, फाइट कर सकते थे, हमने उसको करने की कोशिश की। हम गरीब थे, हम एक्यूज के पास केस लड़ने के लिए लॉयर नहीं थे, मेरे पास कोई लॉयर नहीं था। मैंने खुद जो है कोर्ट में खड़े रह के अप्लाई किया कि मुझे मेरी एक किडनी बेचने की परमिशन दी जाए ताकि मैं एक वो पैसों से एक लॉयर को अपॉइंट करूं तो जो मेरा केस लड़े। लेकिन कोर्ट ने नहीं दिया। बाद में जमीयत उलमा आई और उन्होंने जो हमको लॉयर दिए, उन्होंने केस लड़ा, हमने आरटीआई फाइल की और आरटीआई की मदद से हमने बहुत सारे जो है सबूत या बहुत सारे जो है डिफेंस के पॉइंट्स हमने जमा किए और हमको बहुत उम्मीद थी कि ये बोगस केस है और इसमें बहुत सारी चीजें जो है हमने बहुत अच्छे से पेश की है और हम जीत जाएंगे। लेकिन जब जजमेंट आया है और इतना खतरनाक जजमेंट है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कन्विक्शन है डेथ पेनल्टी की आज इसी केस में है, तो हमको बहुत दुख हुआ। और आप जब वो कमरा देखेंगे जहां पर जजमेंट सुनाया जा रहा था, तो जिसको जिसको एक्विटल मिला है वो रो रहा था और जिसको कन्विक्शन मिला है, डेथ पेनल्टी मिली है, वो हंस रहे थे। मुझे ये तकलीफ हो रही थी कि ठीक है मुझे छोड़ दिया कोर्ट ने, लेकिन जो 12 लोग हैं उनको भी तो छोड़ना चाहिए था, वो भी तो मेरे साथ बेगुनाह थे, उनको सजा की हो गई। तो मुझे इस बात पर रोना आ रहा था और जो हंस रहे थे उनको ये था कि ये जो जज साहब है या तो ये इनको पता नहीं है हकीकत क्या है, या तो ये बिकाऊ है और जो है अपने आप को ये शायद गवर्नमेंट के सर्वेंट समझते हैं और जो गवर्नमेंट ने डिक्टेट किया होगा उसका उन्होंने फैसला दे दिया। तो वो हंस रहे थे और उनको ये उम्मीद थी आगे चल कर कि हाई कोर्ट में ये सब छूट जाएंगे। तो बाद में हाई कोर्ट के अंदर भी मामला गया, कुछ लोगों की अपील हुई, लेकिन पिछले 6 सालों से अपील जो है प्रोसीड नहीं हो रही है। इसीलिए पिछले 15 सालों से ये कैदी जेल में है और सजा लेकर के ये बेचारे मतलब फांसी की सजा लेकर के ये परेशान है। उसमें एक कैदी अभी हाल ही में जो डेथ पेनल्टी का कैदी है कोविड-19 से, कमाल अहमद, वकील अहमद अंसारी, जो नागपुर जेल में जिसका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है कि बेगुनाहों को ना सिर्फ सजा दी गई है बल्कि वो कोविड-19 की वजह से जेल में मर गए हैं। तो अगर ये 11 लोगों की सुनवाई जल्द से जल्द नहीं हुई तो इनका भी जो है इस तरह का अगर कोई मामला होता है तो ये बड़ी जो है नाइंसाफी, अन्याय होगा। I'll come back to the question of the appeals shortly. But actually, you did something quite remarkable while you were in jail. You actually studied a great deal, and I understand a lot of the work for your book was done while you were sort of in prison. Can you tell us a little bit about that experience and what led you to develop your interest in law and so on while you were in prison? देखिए, हमसे पहले जब हम जेल में पहुंचे तो हमसे पहले 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस के बहुत से एक्यूज, 40-50 एक्यूज अथर रोड जेल, मुंबई सेंट्रल जेल में बंद थे और वो पिछले 14 सालों से ट्रायल फेस कर रहे थे। तो जब हमको ये पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट केस के एक्यूज का इतना मैराथन ट्रायल चलता है कि 14-14 साल लग जाते हैं, तो हमको ये रियलाइज हुआ कि अब हमारा केस जो कि झूठा है, सब कुछ गलत है, लेकिन चूंकि ब्लास्ट का केस बन चुका है तो इसमें टाइम लग सकता है, तो हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हमने ये कहा कि जब टाइम जेल में बिताना है, कितने साल लगेंगे किसी को पता नहीं है, तो हमको जो है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। इसीलिए अरेस्टिंग के नेक्स्ट ईयर हमने जो है कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि हम लॉ स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ग्रेजुएट थे। तो मैंने और जो है दूसरे एक एक्यूज ने जो है अप्लाई किया और कोर्ट ने हमको परमिट कर दिया। साथ ही साथ हमने जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो के अंदर अप्लाई किया कि बहुत सारे प्रिजनर है जो सालों से जेल में है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको जेल में पढ़ने के लिए कोई सहूलत नहीं है, उनको एडमिशन और एडमिशन की फीस भरने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आप अगर यहाँ पर कोई सेंटर कायम करते हैं और प्रिजनर्स के लिए अगर आप जो है फ्री एजुकेशन अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और बहुत सी एप्लीकेशंस हमने भेजी, कैदी से भिजवाई, तो इग्नो ने जो है इसको कंसिडर किया और इग्नो ने जो है अथर रोड जेल के अंदर एक सेंटर बनाया जहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रिजनर के लिए था। इग्नो में बहुत सारे कोर्सेज में वो फ्री एडमिशन ले सकता था, एग्जाम दे सकता था। तो वहां से फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने जर्नलिज्म किया, मैंने लॉ की पढ़ाई मुकम्मल की और फिर मुझे साथ ही साथ मेरे जहन में ये बात भी आई कि ये हमारे साथ जो गलत हुआ है,
जो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी एटीएस ने हमारे साथ की है। तो इस स्टोरी को हम रहे या नहीं रहे ना रहे, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या सजा मिलेगी, ये मुझे कोर्ट छोड़ेगा भी या नहीं छोड़ेगा। तो हमने ये सोचा कि इसको जो है बाहर तक के जाना चाहिए, इसीलिए मैंने अत्थर रोड जेल के अंदर अंडा सेल के अंदर बैठ करके ये बुक लिखी। और इसको बार बार अत्थर रोड जेल की सुप्रिंटेंडेंट स्वाति साठे उसको लेकर कभी फाड़ देती थी, कभी जला देती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही उसको लिखा और किसी तरह उसके पेजेस को मैंने बाहर स्मगल किया। और उसके बाद मेरी रिहाई के बाद जो है ये बुक छपी, जो आपके सामने है। तो हौसला हमने नहीं छोड़ा और अपने जो टाइम को, जो मैं 9 साल जेल में रहा, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए मैं पढ़ाई लिखाई करता रहा। You were saying that your confidence and will did not break in jail. We've just had the very, very sad, tragic experience of Father Stan Swami uh, dying uh, uh, after his repeated attempts to get bail were thwarted in the criminal justice system. And one of the things that has been said after that is that bail should be more liberally granted in UAPA cases and in other cases. From your experience, is the issue really bail, or listening to you, that the trial process itself takes so many years? I mean, you've said that these death penalty cases are now pending in the High Court, the appeals for 6 years. Isn't that the problem rather than bail or not bail, that just simply being in jail with a death penalty hanging over your head for so long is a kind of torture in itself? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है इस तरह से डबल गेम खेलती है। आई मीन उसको पता है कि भी अगर 10 लोग किसी केस में अरेस्ट है तो जब ट्रायल कंक्लूड होगा तो हो सकता है इसमें 1-2 लोग छूट जाए और बाकी लोगों को सजा हो। तो ये बेल के प्रोविजंस इतने इसमें हार्ड बना दिए गए हैं कि बेल किसी को मिले ना, ताकि जो लोग ट्रायल कंक्लूड होने के बाद छूटने वाले हैं वो अभी जेल के अंदर ही रहे, उनको बेल डिनाई होता रहे और वो जो है जेल काटते रहे। तो जितना वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं इस प्रोसेस को, प्रोलॉन्ग वो इसलिए करते हैं कि जो लोग बेल पर छूटने वाले हैं उनको बेल ना मिले, और जो बेल नहीं मिल रही है आई मीन वो एक लंबे अरसे तक जेल में सड़ते रहे, और जब इनका ट्रायल कंक्लूड हो तब वो अगर छूट जाते हैं तो छूट जाए, लेकिन वो ट्रायल कंक्लूड होने में जो है 10 से 12 साल या 15 साल लग जाते। और 10 से 12 साल के बाद जब कन्विक्शन होता है जिन लोगों को, वो तो उनको तो जेल में ही रहना है, उनको तो बाहर आना नहीं है। तो फिर उनकी लड़ाई जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो ये प्रोसिक्यूशन एजेंसी की जो टेक्निक है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम ट्रायल फेस कर रहे थे तो हमको ऐसा लगता था कि सब जो कुछ भी है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो पूरा केस चलाता है, वो जो है गाड़ी का ड्राइवर है। गाड़ी कब रुकेगी, कितने देर रुकेगी, कब आगे चलेगी, नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होगा, नेक्स्ट विटनेस कौन सा होगा, कितने दिन उसको जो है उसकी टेस्टिमनी होगी, और उसका जो है चीफ एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और कितने दिन कोर्ट को जो है डिले करना है। ये सारी चीजें पब्लिक प्रोसिक्यूटर तय करता है। जज जो है वो सिर्फ जो है एक तमाशाई की तरह वो देखते रहता है। मुझे लगता है, मुझे हंसी भी आती है पूरे जुडिशरी के ऊपर कि जज की हैसियत तो कुछ नहीं होती है। और बहुत से टाइम पर ऐसा होता है कि छोटी छोटी एप्लीकेशंस जो हम देते हैं, जब तक के वो प्रोसिक्यूशन का स्टे नहीं लेता है वो पास नहीं कर देता है। और ऐसा कई बार हुआ है कि बड़े बड़े इश्यूज पर, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस पर हमारी से लिए बगैर वो जो है ऑर्डर पास कर देता है। तो ये जो है टेक्निक है कि बेल ना दिया जाए, बेल को डिनाई किया जाए और ट्रायल को प्रोलॉन्ग किया जाए, ताकि जो उनका मकसद है कि जो बेगुनाह है ज्यादा से ज्यादा जेल में रहे, वो अपने मकसद को पा सके। I'm just curious, given the great length of time that your trial went on for, typically how many days or weeks would pass between each date of hearing? Uh, were the dates quick? Was any effort made to prosecute the trial quickly, given the seriousness of the trial, or was it just business as usual with date after date, तारीख पे तारीख? हाँ, 2006 में जो हमारा केस बना था उसके बाद करीब
एक साल तक के हमको सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही। हालांकि 2006 में ही चार्जशीट फाइल हो गई थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास टाइम नहीं था या कोर्ट के पास टाइम नहीं था। दूसरे एमसीओसी केसेस वो ट्रायल चल रहे थे, इसलिए वो डेट पे डेट मिल रही थी। 15 दिन की डेट, कभी 1 महीने की डेट, कभी 2 महीने की डेट, इस तरह से मिलती थी। 2007 में हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, और हमने कहा कि हमारे ऊपर जो है टेरर लॉ जो है दो लगे हैं। स्टेट का एमसीओसी लगा है, सेंटर का यूएपीए लगा है। तो साहब एक ही टेरर केस है तो दो लॉ की क्या जरूरत है? तो सिर्फ यूएपीए रहने दिया जाए, एमसीओसी हटा दीजिए। अगर आपको एमसीओसी अच्छा लगता है तो यूएपीए हटा दिया जाए। लेकिन वो केस में हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से स्टे मिला, और वो 2 साल वहां पर जो है चले गए, वहां से सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब वहां से फैसला आया तो केस शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त शाहिद आजमी का मर्डर कर दिया गया था, जो हमारे डिफेंस लॉयर थे और बहुत बड़ा पैनल लेकर के वो चल रहे थे। फिर उसकी वजह से केस डिस्टर्ब हो गया, और फिर उसके बाद केस 2010 में ट्रायल शुरू हुआ। देखिए 2006 में अरेस्टिंग हो रही है, 2010 तक के बस इसी तरह की जो है ऐसे टाइम पास होता रहा, और 2010 में ट्रायल शुरू हुआ। उसके बाद 2010 से 2014 तक कंटिन्यू 5 साल ट्रायल चला है, और रोज सुबह से शाम तक वो चलता था। कभी उनके विटनेस नहीं आते थे, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन चलता था। 2014 में फिर कोर्ट ने जो है इसको रिजर्व कर लिया। उसने कहा कि मैं अभी जजमेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही लेंदी और वॉल्यूमियस पेजेस थे और बहुत लंबा ट्रायल था। उनकी तरफ से 200 विटनेस थे, हमारी तरफ से 50 विटनेस थे, और 250 जो है विटनेसेस थे, और साथ ही साथ हजारों जो है एग्जिबिट्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारी चीजें देखना। तो कोर्ट ने सिर्फ जजमेंट लिखने के लिए 1 साल लिए, और 2014 के बाद 2015 सितंबर में जो है 2000 पेज का करीब करीब वो जजमेंट उसने लिखा, और 2015 सितंबर में उसने जो है जजमेंट डिलीवर किया। तो ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने जानबूझ के इसको डिले किया। हालांकि ये केस जो है 2 साल के अंदर कंक्लूड हो सकता था। यूएपीए के बहुत सारे केसेस है ऐसे जिसमें सिर्फ 11 विटनेस है, और इसके लिए 20 साल का पीरियड लगा दिया गया। अभी सूरत में जो 124 लोग यूएपीए के केसेस से छूटे हैं, उसमें कुल मिला के 20 विटनेसेस है, लेकिन पूरे केस को ट्रायल खत्म करने में 20 साल लग गए। And I think I should explain that out of those 20 witnesses, not all had very complicated testimony. Many of them were just formal witnesses. The whole matter could have been finished much, much more quickly. Why none of you or your co-accused are from very rich families? Can you give us a sense of what it cost to defend yourself and what it is costing your friends to conduct their trials? How they have gone about it? Are people helping with the costs? What impact it has had on the families for whom I guess the income of these young men is also important, which they have lost all these years? हाँ, देखिए ये तो सही है कि ये बहुत ही गरीब फैमिली से सारे लोग ताल्लुक रखते हैं, और जो वर्कर फैमिली से काम काज करने वाले छोटा मोटा। लेकिन जब इनको अरेस्ट किया, इसमें से बहुत से लोग जो है शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, ये अर्निंग पर्सन है, और जो है सिर्फ कमाने वाले एक ही है घर के। लेकिन इस केस में अरेस्टिंग के बाद इनकी नौकरी चली गई, मेरी खुद जॉब चली गई थी, और पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। अब किसी तरह से फैमिली ने जो है अपना गुजारा कर लिया। बीवी कोई काम पे चली गई, छोटा भाई ने अपनी एजुकेशन छोड़ दी, वो काम पे चला गया, माँ जो है यहाँ वहाँ किसी के बर्तन मांज रही है, बूढ़ा बाप है वो कुछ मजदूरी कर रहा है। इन्होंने घर तो चला लिया किसी तरह से सूखा मुखा खा कर, लेकिन जो ट्रायल जो चलाना था इसके लिए ये इसको नहीं एफर्ट कर सकते थे, ये वकील नहीं कर सकते थे जो ये ब्लास्ट के जैसे केसेस को, एमसीओसी और यूएपी जैसे केसेस को जो है फाइट कर सके। हमने जेल से बैठकर फिर मौलाना अरशद मदनी साहब को जो है खत लिखा, जो जमीयत उलमा एक मुस्लिम एनजीओ है, और हमने कहा कि जो है ये हमको गलत केस में फंसाया गया है, और आप एक बहुत बड़ी एनजीओ है, आपको अगर आप हमारे लिए अगर वकील देते हैं, लॉयर देते हैं हमको डिफेंड करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये खत जाने के बाद लेटेस्ट जो जेल से गए हैं उन्होंने उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट किया, फिर शाहिद आजमी को उन्होंने अपॉइंट किया, और फिर सबसे पहला जो केस है वो 7/11 का जो इश्यू है, जो यूएपीए लगेगा या एमसीओसी लगेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक के लेकर गई, वो जमीयत उलमा है।
और इस तरह से जमीयत उलमा ने इस केस को फिर लड़ा और हमारे हमको जो है डिफरेंट लॉयर दिए और आखिर तक आज भी जो सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर जो अपील्स पेंडिंग है उसको जमीयत उलमा ही देख रही है और उनके लॉयर्स इसको लड़ने वाले हैं। जहाँ तक के जो फैमिली के डिस्टर्बेंस की बात है, तो फैमिली तो देखिए बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, बहुत ज्यादा सफर हुई है, जिसकी जिसकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकते आप। यानी बच्चे बाप से दूर हो गए, बीवी जो है अपने शौहर से दूर हो गई और उन जो जो खुशियां हैं वो खुशियां उनकी छीन ली गई। हर ईद में लोग अपने घर वालों का इंतजार करते रहे लेकिन कोई आता नहीं था। वाहिद साहब, आप बता रहे थे कि कई घरों में अरेस्ट के वजह बहुत मुसीबत हो गई थी, आपकी बेगम साहिबा कोई नई जिम्मेदारियां लेनी पड़ी। ये जरा थोड़ा दोबारा बता सकते हैं इसके बारे में? जी, जी। तो मैंने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ़ जो है एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, बुर्का पहनती है, वो किसी अनजाने मर्द से बात नहीं करती, वो घर से बहुत कम निकलती है। लेकिन अचानक इस केस में गिरफ्तारी की वजह से वो भी घर का खर्च चलाना है, बच्चों को पालना है, तो फिर उसको जो है घर के बाहर निकलना पड़ा, नौकरी ढूँढनी पड़ी और बॉम्बे के एक स्कूल में उसको नौकरी मिलती है और वो काम करने के लिए वहाँ दिल्ली जाती है। छोटे बच्चों को घर पर जाती है। उस वक़्त मेरी बच्ची माँ का दूध पीती थी, लेकिन नौकरी करने की वजह से वो उसको माँ का दूध बराबर नहीं मिला। तो इस केस के जितने भी एक्यूज़ हैं, उसके घरवालों की हालत यही थी, बहुत गरीब थे और बहुत परेशानी से उन्होंने जो है अपने दिन काटे हैं और आज भी काट रहे हैं परेशानी में क्योंकि आज भी 11 लोग जो है, आज भी जेलों के अंदर बंद हैं जो एक कमाने वाले घर में थे। One of the interesting things is that you have decided to, despite coming out of prison, a lot of people might have said, I've had enough of this trouble. I just want to stay away from anything controversial or difficult. You actually chose to set up an NGO and campaign on these issues. Can you tell us a little bit about your NGO, what it is you do? जी, जी। देखिए, ये जो है ना एक प्रॉमिस है जो मैंने मेरे कोई एक्यूज़ के साथ किया है। जिस दिन जजमेंट आया है सितंबर 2011 सितंबर 2015 को जब जजमेंट आया है, तो मेरे कोई एक्यूज़ ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है जेल से रिहा मत हो जाइए, एक दिन आप डिले कीजिए। हालाँकि जिस दिन जजमेंट आया था उस दिन सारे पेपर्स और सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई थी और मुझे जेल से वो छोड़ रहे थे। लेकिन मैंने पेपर्स पर साइन नहीं किए, मैं 1 दिन जेल में और रुका, क्योंकि मेरे को-एक्यूज़ ने रिक्वेस्ट की थी कि आप 1 दिन रुकिए, हमको आपसे लास्ट कुछ टॉक करनी है। और वो जो बात करना चाह रहे थे सब लोगों ने ये मुझसे कहा कि देखिए आप तो जानते हैं, आप तो फर्स्ट हैंड विटनेस है कि इस केस में कितना गलत हुआ है, कितना टॉर्चर हुआ है, कितना रॉन्गफुल जो है फ्रेमिंग हुई है, आप सब कुछ जानते हैं। और अभी 9 साल के बाद जो जजमेंट आया है, ये बहुत ही वर्स्ट जजमेंट है और आप छूट रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप हमसे एक प्रॉमिस कीजिए कि बाहर जाने के बाद आप हमको भूलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए जेल का एक ट्रेडिशन ये है कि जेल में लोग सालों-साल रहते हैं और बहुत वादे कसमें खाते हैं, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आता है कोई तो वो सबको भूल जाता है। तो ये एक्सपीरियंस सबको था। तो उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया कि आप हमको भूलेंगे नहीं, आप जो है हमारे लिए कोशिश करेंगे, आवाज़ उठाएँगे, जो कुछ हो सकता है आप करेंगे। तो मैंने उनसे वादा किया था, उनके हाथ पर हाथ रख कर के कि हाँ, आप लोग बेगुनाह हैं और मैं आपके लिए बाहर जाने के बाद कोशिश करता रहूँगा, भूलूँगा नहीं। ये वही प्रॉमिस है जो मैं निभा रहा हूँ। मैंने आने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि एक एनजीओ मैंने बनाई जिसका नाम है इनोसेंस नेटवर्क और इसका सबसे बड़ा काम यही है कि जो रॉन्गफुल जो कन्विक्शन और जो रॉन्गफुल अरेस्टिंग हुई है 7/11 केस के अंदर और उसके लिए कैंपेन चलाना। और इसके साथ ही साथ जो पूरे इंडिया में जो रॉन्गफुल कन्विक्शन होता है या अरेस्टिंग होती है, उसके बारे में भी आवाज़ उठाना। मैंने दूसरा जो काम किया है वो इस केस पर मैंने किताब लिखी है, जो इनोसेंट प्रिज़नर अभी आई है, बेसिकली ये केस के बारे में ही डिस्कस करती है। और इसके साथ ही मैंने जो लॉ की डिग्री हासिल की थी, तो फिर मैंने ये भी कहा कि जो जमीयत उलमा के जो लीगल पैनल है उसमें जाकर के जो हेल्प मुझे करना चाहिए मैं करूँगा और मैंने किया भी। तो जो इनोसेंस नेटवर्क है ये बेसिकली ये वो प्रॉमिस है जो मैं अपने 12 को-एक्यूज़ को जेल में कर आया हूँ। मैं वो प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता, मैं वो प्रॉमिस निभाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ क्योंकि वो बेगुनाह हैं। Final question. In this case, we see the failure of the police, we see the failure of the judicial system, but there's also something depressing about the
political reactions to this case. It was, after all, a Congress government under which you were first prosecuted. Since then, we've had a BJP government, coalition government in the state, many others. Why do you think it is that no political leader from any party, including many people who had no vested interest in revisiting this case, why has there been this silence from across the political spectrum? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के ज़माने में ये सारी कारस्तानी हुई है और कांग्रेस के ज़माने में जो हुआ है ये बीजेपी की एक पॉलिसी अपनी रही है और वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम जो है ये ब्लास्ट के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो और ये जो है मुसलमान करते हैं और कांग्रेस के ही हाथों से मुसलमानों की एक बड़े पैमाने पर अरेस्टिंग की गई। हमारा केस है, मालेगांव का जो केस है, जो बाद में जो है बिल्कुल उसमें से लोग छूट भी गए। तो एक तीर से वो दो निशाने करते रहे। अब जो कांग्रेस चले गई है और बीजेपी कहीं पावर में है या कोalition गवर्नमेंट पावर में है, तो बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ करेंगे। लेकिन जो कोalition गवर्नमेंट है, जहाँ पे कांग्रेस और एनसीपी और अदर पार्टीज है, तो वो भी कुछ करने के मूड में नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि वो गिल्टी फील करते हैं कि तो हमारे ही रीजन में हुआ है, हमारे ही टाइम पर हुआ है, हम इसमें क्या मदद करेंगे। अगर वो मदद करने की भी कुछ सोचते हैं तो उनको वो पहले तो यही सवाल किया जाएगा कि साहब आप ही के पीरियड में तो ये सब हुआ है, अब आप क्या मदद को निकले हैं, आप क्या मदद करेंगे। तो मुझे लगता है ये जो है कांग्रेस चाहकर भी इस केस में मदद नहीं कर सकती है और बीजेपी और शिवसेना से तो मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरा जो फैक्टर है, जो मालेगांव ब्लास्ट के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी ने और सिविल सोसाइटी के लोगों ने जो एक आवाज होकर के ये बात कही थी कि वो ब्लास्ट मस्जिद के अंदर या कब्रिस्तान के अंदर जो हुआ है मुसलमानों ने नहीं किया है, ये बच्चों ने नहीं किया है, उनको रिहा किया जाए और उसके नतीजे में केस जो है एटीएस से सीबीआई और सीबीआई से एनआईए को ट्रांसफर हुआ और अल्टीमेटली वो बच्चे छूट गए। हमारे केस में मुसलमानों की एक आवाज उस तरह से नहीं उठी, सिविल सोसाइटी की एक आवाज उस तरह से नहीं उठी और ये केस गो के पहले दिन से डिस्प्यूटेड रहा है। लेकिन वो जो इसके लिए कोशिश होना चाहिए था, जो कैंपेन होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और जब मैंने आकर के कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश बहुत लेट आफ्टर थॉट कहिए या लेट है क्योंकि उस वक्त तक के सब कुछ खत्म हो गया था, कन्विक्शन लग चुका था ट्रायल कोर्ट से और अब जो कुछ कोशिश हो रही है, उम्मीद ये है कि उसका शायद कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो है हाई कोर्ट वगैरह में हमको शायद नजर आ जाए। Thank you very much for speaking to us, Wahid. I'm sure people will be following the course of these appeals in the High Court with great interest. This is a case of importance not just for the people who were convicted controversially in the lower court, but also, of course, for the victims of 7/11 who, as the evidence piles up, there is more and more reason to believe have not got justice. And in fact, that the people who may be responsible for this attack are not even being prosecuted, though law enforcement and government are fully aware of who those individuals are. This has to be one of the strangest and saddest stories in the history of the Indian criminal justice system. And we will, of course, be following this with interest. Thank you again for taking the time for speaking to us. Thank you, sir. Thank you. Thank you for hanging in there and listening to the full conversation. If you liked what you heard, do share it with friends and family. You can also leave us a review or rating on iTunes and Apple Podcasts. The crew behind this podcast is Gaurav Krishna on sound supervision and production, with support from S. Sarvanaraj and Raghu Tankaila. Episode artwork and design is by Chandni Venkataraman. Don't forget to subscribe to our channel on your favorite podcast platform. It can also be accessed on our website, bangaloreinternationalcenter.org. This is Lekha Naidu, signing off on behalf of everyone at BIC.